بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں لڑکی بن کر 5 سال تک عورتوں کے مساج کرتا رہا، لیکن کسی کو شک نہیں ہوا کہ میں ایک مرد ہوں۔ ایک دن بہت امیر عورت نے مجھ سے مساج کروایا اور اس نے مجھے اپنے گھر ہمیشہ کے لیے رکھ لیا اور روزانہ مجھ سے مساج کرواتی۔ ایک دن میں مساج کر رہا تھا کہ مجھ پر تیل گر گیا۔ اس عورت نے مجھے اپنے کپڑے دیے اور کہا چینج کر لو۔ میں گھبرا گیا۔ جب میں اس کے سامنے کپڑے بدلنے لگا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں غربت کا مارا ہوا ایک انسان تھا۔ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ مزید تعلیم کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ لیکن مجھے نوکری نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرا انداز زنانہ تھا۔ میں تیسری جنس کا تو بالکل بھی نہیں تھا، ایک مکمل لڑکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میری آواز بھی کچھ لڑکیوں جیسی تھی اور میرے ہاتھ اور پاؤں بھی لڑکیوں سے مشابہت رکھتے تھے۔ میرے ہاتھوں اور پاؤں کی بناوٹ کو دیکھ کر میرے رشتہ دار مجھے نازک اندام حسین کے لقب سے پکارتے تھے۔ کئی لوگوں کو شک تھا کہ میں تیسری جنس کا ہوں، یہاں تک کہ میرے گھر والوں کو بھی کافی عرصے تک یہی لگتا رہا، لیکن میں ایک مکمل لڑکا تھا۔ بس نہ جانے کیوں میرے ہاتھوں کی بناوٹ ایسی تھی، تھوڑی بہت آواز بھی زنانہ تھی۔ میں جدھر بھی کام لینے کو جاتا کوئی بھی مجھے کام نہیں دیتا، ہر کوئی مجھے تیسری جنس کا سمجھ کر جھڑک دیتا۔ کوئی بھی میری بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ میں ایک لڑکا ہوں۔ اگر میں خواجہ سرا ہوتا تو پھر بھی کوئی بات ہوتی، لیکن میں تو ویسے تھا ہی نہیں جیسا دنیا مجھے سمجھ رہی تھی۔ میرے گھر میں فاقے چل رہے تھے، میرے گھر والوں نے بھی مجھے بہت پریشان کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ لوگ بھی میری ذات سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ ان کو بھی میں عجیب ہی لگتا تھا۔ میری ماں کہتی تھی تو نہ بیٹا نکلا نہ بیٹی نکلی، تمہاری بناوٹ بیٹے جیسی ہوتی تو تمہیں کہیں نوکری مل جاتی اور ہمارا گزارا ہوتا، یا پھر تم مکمل بیٹی ہوتی تو ہمیں کما کر دیتی، لیکن تیری تو شناختی واضح نہیں ہے۔ یہ کسی اور کے نہیں بلکہ میری والدہ کے الفاظ تھے۔ جب دنیا کا انسان ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اس کی ماں اس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن میری ماں تو ماں ہے اور وہی مجھے مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری عمر 22 سال ہو گئی اور میں پریشان تھا۔ میں نے اسی پریشانی میں اپنا گھر چھوڑ دیا اور دوسرے شہر آ گیا۔ دوسرے شہر آ کر بھی میں روزگار کے لیے دھکے کھاتا رہا، لیکن مجھے کہیں بھی روزگار نہیں ملا۔ پھر مجھے ایک بندے نے ہمت دلائی جس کا ایک مساج سینٹر تھا اور وہ مردوں کا مساج کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم یہ کام کرو۔ میں نے اس کے سینٹر میں کام کرنا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی سب نے مجھے تیسری جنس کا سمجھ کر میرا بہت مذاق اڑایا۔ ان میں سے ایک نے تو موقع پا کر مجھ سے زیادتی کرنے کی بھی کوشش کی۔ یہاں پر میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میں دل برداشتہ سا ہو گیا اور اس سینٹر کو چھوڑ دیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جب دنیا مجھے لڑکی سمجھتی ہے تو میں بھی دنیا کے سامنے لڑکی بن جاتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو لڑکا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اب میں نے ایک چور راستہ اختیار کرنے کا سوچ لیا تھا۔ میں نے ایک عبایا خریدا اور نقاب خریدا اور عبایا پہن کر چہرے پہ نقاب کر کے مکمل طور پر ایک لڑکی کا روپ اختیار کر لیا۔ اس کے بعد میں مختلف دکانوں میں کام تلاش کرنے لگا اور مجھے فوراً سے کام مل بھی گیا۔ ایک دکان کے مالک نے مجھے رکھ لیا جس کی کپڑوں کی دکان تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم دیکھنے میں ضرور خوبصورت ہوگی، اگر نقاب اتار دو تو میرے گاہک زیادہ آئیں گے۔ میں نے کہا کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے وہاں پر کام کیا اور میرا اچھا خاصا گزر سفر ہونے لگا۔ میں نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ میں سارا دن دکان میں بیٹھا ہوتا تھا اور دکان کا مالک میری بہت حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ وہ مجھ پر اس قدر مہربان تھا کہ میں حیران ہو جاتا تھا کہ یہ شخص مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہے۔ اس نے کئی بار مجھے نقاب ہٹانے کی درخواست کی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہاں بھی میرے ساتھ وہی ہوا جو مساج سینٹر میں ہوا تھا۔ دکان کے مالک نے ایک رات مجھے بہانے سے روک کر رکھا اور پھر دکان بند کر کے مجھے زیادتی کا نشانہ بنانا چاہا، لیکن جیسے ہی اس نے میرا نقاب کھینچا تو اسے معلوم ہو گیا کہ میں لڑکا ہوں، کیونکہ میری شکل تو لڑکوں جیسی ہی تھی، بس ہاتھوں کی بناوٹ لڑکیوں جیسی تھی اور تھوڑی آواز بھی۔ میرا چہرہ دیکھ کر دکان کے مالک نے مجھے بہت لعنت ملامت کی اور کہا کہ تم دھوکے سے یہ کام کر رہے تھے لڑکی بن کر۔ میں نے کہا تم نے مجھے اسی مقصد کے لیے ساتھ رکھا ہوا تھا، اگر میں واقعی لڑکی ہوتا تو تم تو میری عزت تار تار کر دیتے۔ آج میں لڑکی نہیں تھا، لڑکا تھا، مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ میں اسے دھکا دے دیتا۔ میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کامیاب ہو گیا اور جب اس نے میرا نقاب کھینچا تو اسے میری اصلیت پتہ چل گئی۔ اس کے برعکس جو میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ یقیناً اپنا دفاع نہیں کر سکتی تھی۔
क्योंकि वो शख्स बहुत ताकतवर था, लेकिन मैं भी एक मर्द था और मेरे अंदर भी ताकत थी और मैंने खुद को बचा लिया। मैं वहां से भाग निकला। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि ये दुनिया कैसी है, ना लड़के को छोड़ती है ना लड़की को। जब मैं लड़की बनकर दुनिया के सामने जाता हूँ तो कहते हैं कि मुझे धोखा दिया तुमने, तुम तो लड़के हो। और जब मैं लड़का बनकर सामने आता हूँ तो मुझे तीसरी जिन्स का समझकर हकारत से देखते हैं। मैं एक बार फिर से बेरोजगार हो गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। इसी तरह अबाया और नकाब पहनकर अपनी आवाज को मजीद जनाना बनाकर मैंने दूसरी नौकरी कर ली। ये भी एक दुकान थी और वहाँ की मालकिन एक औरत थी, तो मुझे जरा तसल्ली थी। उस औरत ने मुझे नकाब हटाने का भी नहीं कहा। उस औरत का छोटा सा बुटीक था और मैं उसकी बुटीक का ख्याल रखता था और उसके ग्राहकों को डील करता था। एक दिन वो औरत बहुत परेशान थी। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो उसने कहा कि मेरे सर में दर्द है और मेरा अंग अंग दुख रहा है। मैंने उसे कहा कि ऐसे में आपका सर दबा देती हूँ। मैंने उसका सर दबाया तो उसको बहुत आराम मिला। फिर मैंने उसके कंधे दबाना शुरू किए और मैं यूं करते करते उसके जिस्म के मुख्तलिफ जावियों पर हाथ फेरकर मसाज के अंदाज में दबाता जा रहा था और उस औरत को आराम महसूस हो रहा था। उसने मुझसे कहा कि तुम तो बहुत अच्छी मालिश करती हो, मेरा तो सारा दर्द ही तुमने गायब कर दिया। तुम्हें तो मसाज सेंटर खोलना चाहिए, तुम्हारे हाथों में बड़ी शिफा है। ये मसाज सेंटर वाली बात उसने शायद ऐसे ही बोल दी थी, लेकिन ये बात मेरे जहन में बैठ गई। मैंने सोचा बात सच है कि मेरे हाथों में इतनी शिफा है, मैं बहुत अच्छे से मसाज कर सकता हूँ। लेकिन सारा मसला यही है कि मैं मर्दों का मसाज करता था तो वो मुझे गलत निगाह से देखते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं औरतों का मसाज शुरू कर दूं, औरत बनकर ही। और ये ख्याल आते ही मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। अगले दिन जाकर मैंने अपनी मालकिन से कहा कि मुझे थोड़ा कर्जा चाहिए, मैं जल्दी आपका कर्जा वापस कर दूंगी। मेरी मालकिन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी दिल की मालिक थी और अब वो रोजाना ही मुझसे मसाज करवाया करती थी। उसने मुझे कहा ठीक है, अगर तुम इतनी परेशान हो तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत कर्जा दे देती हूँ। तुम्हारा इखलाक और काम का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई मसला नहीं है। उसने मुझे अच्छी खासी रकम कर्ज में दे दी थी और मैं खुशी से निहाल हो गया। मैंने उस रकम से एक मसाज सेंटर खोल लिया औरतों के लिए। वक्फे वक्फे से औरतें आती रहीं। मैंने ये सेंटर कर्ज़ई की बुनियाद पर खोला था और खुदा से दुआ मांग रहा था कि मेरा कारोबार चल जाए ताकि मैं अपनी मालकिन का पैसा वापस कर सकूं। मैं दिन को औरत की बुटीक में काम करता और शाम को अपना मसाज सेंटर खोलता और औरतें आती थीं और मुझसे मसाज करवाती थीं। और मैंने नकाब किया होता था, वो मुझसे मेरे नकाब की वजह पूछ रही थी तो मैंने यही कहा कि बस मैं शरई पर्दा करती हूँ। मेरे हाथों की बनावट से किसी औरत को शक नहीं हुआ कि मैं असल में हूँ कौन। मैं हमेशा सोचता था कि खुदा ने मेरे हाथ ऐसे क्यों बनाए हैं, क्यों मेरे हाजिराना तर्ज के हैं। लेकिन आज खुदा की सी नेमत का मुझे अंदाजा हो गया था। इसमें कोई चीज बेकार नहीं बनाई थी उसने। मेरे हाथ ही थे जो मेरे काम आ रहे थे। मेरा काम चल पड़ा था, मेरा मसाज सबको बहुत अच्छा लग रहा था, हर कोई मेरी तारीफें कर रहा था और मेरे ग्राहकों में इजाफा होता जा रहा था। जो भी औरत मुझसे मसाज करवाती वो आगे जाकर दूसरी औरतों को मशवरा देती कि इसके हाथ में बड़ी शिफा है। अक्सर ऐसी औरतें आती थी जिनको जिस्म की तकलीफ का मसला होता था और मसाज करने से उनकी तकलीफ गायब हो जाती थी। ये तमाम औरतें मेरे सामने अपना अच्छा खासा लिबास उतार देती थीं, लेकिन मैं उनको देखता नहीं था, आंखें बंद करके अपना काम करता था। मेरा उनको देखना भी हराम था, मेरा कोई मकसद नहीं था, बस मैं सिर्फ मजबूर था। फिर एक दिन एक बहुत बड़ी गाड़ी में एक औरत आई जो बहुत ज़्यादा अमीर लग रही थी। मेरे पास इतनी अमीर औरतें नहीं आती थी, लेकिन वो औरत कुछ ज़्यादा ही अमीर थी। उसका लिबास और उसकी गाड़ी सब कुछ चीख चीख कर उसकी हैसियत की गवाही दे रहे थे। वो औरत मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे मसाज की बहुत तारीफ सुनी है, मुझे जिस्म में बहुत तकलीफ रहती है, मैं बहुत ज्यादा अजियत में हूँ, कोई दवाई भी असर नहीं करती है, मेरा वजन ज्यादा होने की वजह से मेरा जिस्म बहुत दर्द करता है, इसलिए मैं तुमसे मालिश करवा कर देखना चाहती हूँ कि असर होता है कि नहीं। वो औरत जैसी भी थी, अमीर कबीर सेहतमंद औरतें ऐसी ही होती हैं, भारी जिसामत के साथ। मैंने आराम से उसका मसाज किया और काफी देर तक करता रहा तो उसको बहुत सुकून आया। उसने मेरी तारीफ की और फिर चली गई। लेकिन अगले रोज वो फिर आई और मुझे कहा कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम मुस्तकिल मेरे घर पर रहो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम्हें ये सेंटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरी तकलीफ को दूर कर दो। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया था। वो मुझे इतना पैसा देने पर तैयार थी कि मुझे सेंटर चलाना ही ना पड़ेगा, यानी कि किस्मत मुझ पर मेहरबान हो रही थी। सारा दिन सेंटर में जलील होने के बजाय मुझे एक ही औरत का मसाज करना था और मेरे महीने भर का खर्च निकल आता।
मैंने उस औरत से कहा कि मैं ये सेंटर बंद नहीं कर सकती क्योंकि मैंने किसी से बहुत पैसा उधार लिया था ये सेंटर चलाने के लिए, और जब तक उसका उधार मैं नहीं चुका देती मैं इसको बंद नहीं कर सकती। उस औरत ने कहा कि तुम्हारा सारा उधार मैं चुका दूंगी, बस तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं अपने घर में ही तुम्हें एक कमरा दे दूंगी, तुम वहां पर रहना। मेरा घर बहुत बड़ा है और मेरे पास बहुत पैसा है, बस ये मेरी तकलीफ मेरी जान नहीं छोड़ती है। मैंने काफी मसाज सेंटर ज्वाइन की लेकिन वो दयानतदारी से काम नहीं करते। तुमने जितनी दयानतदारी से काम किया है मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। मैंने उस औरत से कहा कि आप रोजाना यहाँ आ जाया करें, मैं आपका मसाज कर दूंगी, मसला क्या है? तो उस औरत ने कहा कि तुम्हारा ये छोटा सा सेंटर मेरे शायाने शान नहीं है, मेरा ताल्लुक बहुत ही हाई क्लास से है, और जब मेरी सहेलियों को मालूम होगा कि मैं इतने छोटे से सेंटर में आके मसाज करवाती हूँ तो मेरा मजाक बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ सकती, तुम मेरे घर आ जाओ। मैंने उस औरत की बात मान ली। उस औरत ने मेरा सारा कर्जा चुका दिया। मैंने दुकान की मालकिन को जाकर उसके सारे पैसे वापस किए और अपना सेंटर बंद कर दिया। सोचा जब मुझे यहाँ पर रिहाइश की जगह मिल रही है और इतनी औरतों का मसाज करने के बजाय जब मुझे एक का ही मसाज करना है और खाना पीना सब कुछ मिल रहा है तो मसला क्या है। इस मौके को मैंने नेमते खुदाबंदी समझकर कबूल कर लिया। वो औरत अपने साथ मुझे अपने घर ले गई। उसका घर किसी आली शान महल से कम नहीं था। उसने मुझे रिहाइश के लिए कमरा दे दिया जो घर के पीछे की तरफ था। वो सर्वेंट क्वार्टर था लेकिन मेरे इस कमरे से कहीं ज्यादा बेहतर था जिसपे मैं पहले रिहाइश पजीर था। ये कमरा साफ सुथरा था और अच्छा फर्नीचर भी रखा हुआ था, यानी कि अमीर लोगों के नौकर भी ठाठ से ही रहते हैं। मैंने वहां पर अपना सामान रखा और मैं खुदा के हुजूर सजदा रेज हो गया जिसने मुझे इतना अच्छा मौका दिया था। मैं जानबूझकर दुनिया को धोखा नहीं दे रहा था, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। खुदा ही जानता है कि मैंने कभी उन औरतों के जिस्म पर नजर नहीं डाली थी। वो औरत रोजाना रात को मसाज करवाया करती थी और मैं आंखें बंद करके उसका मसाज करता था। वो मुझसे कहती थी कि तुम दिन रात नकाब क्यों करती हो? तो मैंने कहा कि बस मेरी आदत है। उस औरत ने कहा कि ठीक है तुम्हारा शरई पर्दा है लेकिन एक औरत से औरत का क्या पर्दा, मैं तुम्हारा तो चेहरा देख सकती हूँ। मैंने कहा कि हादसे में मेरा चेहरा जल गया था, मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती, बराए मेहरबानी इस तरह की फरमाइश करके मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे शर्मिंदगी होती है जब लोग मेरा झुलसा हुआ चेहरा देखते हैं। किसी ने दुश्मनी निकाल के मेरे चेहरे पर काफी अरसा पहले तेजाब फेंक दिया था, इस वजह से मेरा चेहरा देखने के काबिल नहीं है और मैं किसी को दिखाना भी नहीं चाहती। मेरी दुखती रग पर हाथ ना रखें तो बेहतर होगा। उस औरत ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि किसी ने तुम्हारे चेहरे पर तेजाब फेंक कर तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दिया। चलो ठीक है मैं तुम्हारे दिल नहीं दुखाती हूँ, लेकिन ये सब किसने किया? उस औरत ने जब ये सवाल किया तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा कि एक लड़के ने मुझे शादी की ऑफर की थी और मैंने उसका रिश्ता ठुकरा दिया। बदले की आग में उसने मेरा चेहरा तेजाब फेंक कर जला दिया कि मैं किसी और से शादी ही ना कर सकूं। मेरे इनकार को उस लड़के ने अना का मसला बना लिया था। इस हादसे के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और इसीलिए मैं अपना चेहरा दुनिया से छुपा के रखती हूँ और यही वजह है कि मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई। मैं अब ये काम करने पर मजबूर हूँ क्योंकि मेरे पास हुनर है, मेरे हाथों में शिफा है, तो जो हुनर खुदा ने मुझे दिया है मैं उससे फायदा उठाना चाहती हूँ। मैंने एक मन घड़त कहानी अपने चेहरे और नकाब को लेकर उस औरत को सुना दी ताकि उसे मेरी बात का यकीन आए, और मैंने इतने एतमाद से ये झूठ बोला था कि उसे यकीन आ गया। उसने मुझसे कहा कि वाकई तुम्हारे हाथ में शिफा है, तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत बनावट के हैं, तुम यकीनन खूबसूरत चेहरे की मालिक लड़की रही होगी। लेकिन मुझे अफसोस बहुत है कि तुम्हारे साथ ये हादसा पेश आ गया, लेकिन मुझे फायदा हो रहा है, तुम्हारे मसाज से मेरी तकलीफ में बहुत कमी आई है। उस औरत ने फौरन से मेरी बात का यकीन कर लिया और मुझे भी इत्मीनान हो गया क्योंकि अफसोस भी हो रहा था कि मैं अपनी पहचान दुनिया से मुझे छुपानी पड़ रही है। हालांकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे झूठ बोलते हुए शर्मिंदगी भी हो रही थी, लेकिन मैं बहुत मजबूर था। मैं अच्छे खासे पैसे अपनी माँ की तरफ भेजने लगा। ये पेट का दोज़ख था जो मुझे भरना था, अपना और अपने घर वालों का। और सच कहते हैं इस पेट के दोज़ख को भरने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। मैंने चोर रास्ता इख्तियार किया था लेकिन फिर भी पूरी दयानतदारी से अपना काम कर रहा था। लड़का बनकर जाता तो हम जिन्स परस्त लोग मेरे पीछे पड़ जाते, लड़की बनकर जाता तब भी लोग मेरे पीछे पड़ जाते। इसलिए मैंने सोचा कि मर्द तो दोनों सूरतों में मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, कोई औरत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए मैंने औरतों के साथ काम करने का फैसला कर लिया। लेकिन मेरी असलियत उस औरत से ज्यादा दिन छुपी न रह सकी
एक दिन मैं उसका मसाज कर रहा था कि अचानक से तेल की शीशी जो मेरे हाथ में थी वो पूरे अबाया पर गिर गई। मैं परेशान हो गया, मेरी मालकिन भी परेशान हो गई। उसने कहा तुम्हारे कपड़े तो खराब हो गए हैं। मैंने कहा मैं कपड़े तब्दील करके आती हूँ। तो उसने कहा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ अलमारी में मेरा सूट पड़ा है, वो निकाल कर पहन लो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पहन सकती आपके कपड़े, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उसने जबरदस्ती अपना एक जोड़ा निकाल के मुझे दिया और कहा कि कपड़े तब्दील करो। मैं परेशान हो गया था, मैं उसके सामने कैसे कपड़े तब्दील करता, क्योंकि ये कमरा ऐसा था जहाँ पर वॉशरूम भी नहीं था। ये कमरा सिर्फ मसाज के लिए उस औरत ने रखा हुआ था। मैंने बाहर जाने की जिद की तो उसने कहा कि अगर मैंने उसके सामने कपड़े तब्दील नहीं किए आज नौकरी से निकाल देगी। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि उसकी नौकरी से मुझे बहुत फायदा हो रहा था। मैं मुफ्त में खा पी रहा था, मुझे रिहाइश मुफ्त में मिली हुई थी, मुझे इतने पैसे मिल रहे थे कि मैं अपने घर वालों को भी भेज दिया करता था। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, मुझे घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता था, मुझे ज़माने की नीयतों का खौफ नहीं था, मुझे यहाँ पर हर सहूलत मैसर थी और मैं उन आसाइशों को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता था। लेकिन उस औरत की जिद थी कि मैं उसके सामने कपड़े तब्दील करूँ। मैंने उसे कहा कि आपके सामने कपड़े तब्दील नहीं कर सकती हूँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं अपना चेहरा भी छुपा कर रखती हूँ, तो मैं अपना जिस्म आपके सामने कैसे खोल सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उस औरत के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी असलियत मालूम हो गई है, मुझे पता चल गया है कि तुम लड़की नहीं हो लड़का हो, इसलिए मैं तुमसे ये कह रही थी कि तुम खुद अपने मुंह से तस्लीम करो। उस औरत की बात सुनकर मैं हैरान हो गया, यानी कि वो पहचान गई थी, वो इतनी चालाक थी, वरना आज तक मैंने इतनी सफाई से काम किया था कि किसी को भी शक नहीं हुआ था कि मैं कौन हूँ। लेकिन उस औरत को शक हो गया, बल्कि उसे यकीन था। उसकी बात सुनकर मैंने रोना शुरू कर दिया। शर्मिंदगी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया कि जमीन फट जाए और मैं जमीन के अंदर समा जाऊं। मैंने जितना उस चीज को छुपाने की कोशिश की, आज मेरा सारा भेद उस औरत के सामने खुल गया था। उसने मुझे कहा कि रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। मैंने उसे सारी बात बता दी कि शुरू से लेकर जमाने ने मेरे साथ क्या रवैया रखा। जब मैं लड़का बनकर जाता तब भी लोग मुझे धुतकार देते और मुझ पर गलत नजर रखते, और मैं लड़की बनकर जाता तब भी मेरे साथ बुरा ही होता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं औरतों के साथ औरत बनकर काम करूं कि कोई मसला ना हो। मैंने किसी के साथ कभी कोई गलत हरकत नहीं की, आंखें बंद करके मसाज करता हूँ। आप जानती हैं सब, गुर्बत का मारा इंसान बहुत मजबूर होता है। काश कि आप जैसे अमीर लोग समझ पाते, लेकिन मुझे पता है कि आप नहीं समझेंगी मेरी बात। मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। मैं जाने लगा तो उसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा हुआ है। जो कहानी तुमने सुनाई है वो यकीनन एक दर्दनाक दास्तान है। तुम कितने मजबूर थे मुझे अंदाजा है। मुझे कुछ दिन पहले ही अंदाजा हो गया था कि तुम लड़की नहीं लड़का हो, और इसीलिए मैंने जानबूझकर तेल तुम्हारे कपड़ों पर गिरा दिया। मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम गलत नहीं हो। तुमने जो किया मजबूरी में किया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अब मैं तुमसे मसाज तो नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है कि तुम लड़की नहीं हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए और काम है। तुम्हारा इखलाक अब तक बहुत अच्छा है, तुमने कोई गलत हरकत नहीं की। मैं तुम्हारी मजबूरी समझते हुए तुम्हें एक और नौकरी दे रही हूँ। औरत की बात सुनकर मुझे खुशी हुई। मैंने पूछा कि मेरे लिए क्या काम है, तो उसने कहा कि तुम्हें मेरे घर की रखवाली करनी होगी। मैं किसी और पर भरोसा नहीं करती। तुम्हें जितना अरसा मैंने अपने घर में रखा, तुमने कोई चोरी नहीं की, बहुत अच्छे तरीके से तुम यहाँ रह रहे थे। आज के बाद तुम मेरे घर की रखवाली करना। मैं घर से बाहर होती हूँ तो मुझे खौफ होता है कि मेरे दूसरे नौकर चोरी करेंगे या मेरा शौहर दूसरी औरतों को घर ले आएगा। मेरे जाने के बाद मेरे घर में क्या होता है, मेरा शौहर और मेरे बच्चे क्या करते हैं, वो सब तुमने मुझे बताना है। आंखें चार करके मेरे घर पर नजर रखनी है, बस इतना सा तुम्हारा काम है। मालकिन की बात सुनकर मैं खुश हो गया। ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान था, यानी कि मुझे सब कुछ यहाँ पर मैसर होगा और मुझे रखवाली करनी होगी। मालिक ने मुझे कहा कि ये बुर्का पहनने की भी जरूरत नहीं है, तुम अपना मर्दाना लिबास में काम कर सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इस बात ने मुझे और खुशी दी थी। मैं अब लड़कों के लिबास में ही काम करता था। मैं देखने में भले लड़की जैसा था, लेकिन मेरे अंदर ताकत लड़कों वाली ही थी। मैं किसी भी चोर और डाकू का मुकाबला कर सकता था। इसलिए मेरा कारोबार एक बार फिर से चल पड़ा। मैंने पूरी दयानतदारी से काम किया। यहाँ पर मेरा रिहाइश और खाना पीना मुफ्त और मुझे तनख्वाह मिलती थी, वो मैं जमा करता जाता और मैंने तनख्वाह जमा करते करते अपना एक छोटा सा मकान ले लिया था और अपने वालिदैन को मैं यहाँ ले आया। मुझे उस औरत के घर में काम करते हुए अब 10 साल हो चुके हैं। वो बीमार होकर अब बिस्तर से लग गई है, लेकिन उसने मुझे नौकरी से नहीं निकाला। मैंने तमाम घर वालों का एतमाद जीता। उस औरत ने मुझे कहा कि लोग तो बहुत है, लेकिन जिस दयानतदारी से तुमने मेरा काम किया था और तुम आंखें बंद करके जब मेरा मसाज करते थे, तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम कितने साफ दिल इंसान हो, बस मजबूर हो। तुम्हारी इसी साफ दिली को देखते हुए मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी।
आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे वालिदैन छोटे से घर में रह रहे हैं और मैं उस घर में आज भी मुलाजिम हूँ। सच कहते हैं जब खुदा एक को एक चीज नहीं देता है तो दूसरे को दे देता है। मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन उस औरत के दिल में खुदा ने रहमत डाल दी थी और मेरे माली मुश्किलात हल हो गए थे। सारी बात मेरी नीयत की थी जो साफ थी। मेरी कहानी सुनकर आपको मुझ जैसे इंसानों के बारे में अंदाजा हो गया होगा कि हम जैसे लोग जो मुकम्मल तौर पर अपनी हम जिन्स किसी को वाज़ेह नहीं कर पाते तो ज़माना उनके साथ क्या सलूक करता है और वो लोग कितने मजबूर होते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे जैसे अगर किसी इंसान को आप देखें तो उसके साथ हमदर्दी वाला मामला करें। अगर एक इंसान मुकम्मल ख्वाजा सरा होता है तो फिर भी उसे ज़माने में जगह मिल जाती है और वो वही काम करता है जो पेशावर ख्वाजा सरा करते हैं। लेकिन अगर एक इंसान मुकम्मल तौर पर मर्द हो लेकिन उसके हाथ पांव की बनावट, उसकी आवाज़ खुदा ने औरतों जैसी रखी हो तो उसे ज़माने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मुकम्मल पागल के लिए एक जगह है जिसे पागल खाना कहते हैं और वो वहीं पर रहता है पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन एक नीम पागल के लिए कोई जगह नहीं होती उसके घर के सिवा। नीम पागल इंसान ना तो पागल खाने में रहता है ना अपने घर में सुकून से रह सकता है। हम जैसे लोगों का यही मामला था। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो जरा को, जी हाँ सुनो जरा को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फौरन कर लीजिए। और अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदाए पहमान।